बड़ा रोल चाहिए तब हम कुछ करेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको जो काम मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसको ईमानदारी से कीजिए, फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट बर्बाद मत। Your journey in Bollywood has been inspiring for many outsiders. Without a godfather, you went and you created your mark, and this mark cannot be erased by anybody. कोई मुझे हिटलर का रोल दे तो क्या मैं मना कर दूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। कमाल रोल है। पॉइंट इज कि वो फिल्म क्या कह रही है, कहीं वो हिटलर को हीरो की तरह तो नहीं दिखा रही। One star whom you think is also an actor and you respect that craft hasn't died. People don't treat it as art, which is very unfortunate. Were you inspired by SRK choosing a negative role? तो लोग बोलते हैं हाँ भाई हीरो है, इसको तो अच्छा दिखना चाहिए, इसको तो बॉडी होनी चाहिए, बाकी इसको एक्टिंग से क्या मतलब। और वो हल्का सा भी एक लाइन भी ठीक से बोल देते हैं तो फिर सब खड़े होकर शुरू हो जाते हैं कि हाँ क्या बात है यार, इस फिल्म में तो कमाल कर। आपने क्रिमिनल जस्टिस में पंकज त्रिपाठी के साथ काम किया है, तो हाउ वाज इट वर्किंग? डिड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस प्रोसेस? मुझे बात करके बहुत अच्छा, बहुत कम लोग ना बड़ी ईमानदारी से सवाल पूछते हैं और कुछ ना वो स्टॉक क्वेश्चंस रहते हैं, कम से कम हम उनसे बचे। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। Hi everyone, I'm Mohsin Ahmed, your host for Self Discovery Podcast. Where I explore the real stories, struggles, and successes of people who found their voice by staying true to themselves. Today on Self Discovery Podcast, we have with us Mohammad Zishan Ayub, one of Bollywood's finest actors, known for bringing authenticity, depth and soul to every role he plays. Whether he's portraying a fiery activist in Article 15, a loyal friend in Raees along with Shah Rukh Khan, or a conflicted revolutionary in Ranjana. अब प्यार ना हुआ, तुम्हारा यूपीएससी का एग्जाम हो गया है, 10 साल से क्लियर ही नहीं हो रहा है। Zishan has the rare gift of making every character relatable and real. He broke into the industry with a powerful negative role in No One Killed Jessica, a performance that earned him critical acclaim and a Filmfare nomination. सर मैं सिर्फ डराना चाहता था सर मैं गोली कान से 2 इंच दूर मारना चाहता था सर। Over the years, in films like Mere Brother Ki Dulhan, Shahid Tanuet's Manu Returns, Mission Mangal, and OTT hits like Criminal Justice, his journey as an outsider without a godfather in the industry speaks of resilience, passion, and an unwavering belief in his art. And if you haven't watched yet his latest gripping performance in Criminal Justice, Family Matters on Jio Hotstar, you're missing a legal war with a suspense and emotion that keeps you hooked till the very end. Welcome to my show, Zishan. How are you doing today? Thank you so much for such a great introduction. I'm good. How are you? Great. So, Zishan, you tell me you started your role with No One Killed Jessica, the most hated character, I would say, and you left such an amazing impact. Mm-hmm. You also got nominated for many awards. How did you choose this role? Actually, I think the role chose me. I did not choose the role. It just happened by chance. And I was by chance in Mumbai because I had to take a flight to New York. And during that time, I got a call that they are auditioning for this role. I went there and we were just discussing about the idea of acting with Gautam Kishan-Chandani, the casting director of the show. Mm-hmm. And I got a call from Abhishek Banerjee. He's also an actor now. So he was associate casting director at that time. So I just went there because I was like, okay, I'm leaving India right now. Why would I audition or anything? And I gave the audition because Gautam wanted me to, and things just fell in place and I got that character. So actually, it was like that character and script chose me, and it wasn't like a choice for me. It was just happening, and I just went with the flow. So, were you inspired by SRK choosing a negative role, and you did not even think twice that okay, fine, I'm getting a negative role, I'll perform the best in this? No, I think it wasn't about Shah Rukh sir's past. It was more about that I'm a theatre actor, so I don't think that doing this kind of character would be bad or this will give you an image that you won't be able to break. I think I always take that as a challenge. If someone says that you should not be playing such role because then people will start typecasting you, then I've always done that.
in last 15 years. I've been doing that continuously. That I'll definitely take that role, and in 2 or 3 years, I'll try and break that mold, and I start getting typecast in something else. So I think that is a fun part. Rightly said. You have always taken different roles, actually, so unique. And the screen time, even though it hasn't been so much in few of them, but it has left a mark and a lasting impact on the audience. तो आप ये कैसे करते हैं छोटे स्क्रीन टाइम में, जैसे पहले आप कर रहे थे बहुत सारे रोल्स में? इट लेफ्ट सच अ ब्यूटीफुल इम्पैक्ट ऑन पीपल दैट पीपल कुड नॉट फॉरगेट दैट कैरेक्टर, probably they were using them as anecdotes in their life. I think that is the idea. I think जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं एक्टिंग में, आई थिंक हम लोगों ने ना एक्टिंग को ये मेड इट समथिंग लाइक अ कंपटीशन, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गलत अप्रोच है. एंड इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट to your character, and if a writer has written your character and they need you in the screenplay or anything, the director को अगर जरूरत है आपकी, so they will keep you there, and it has some sort of importance there. And if you deliver that line perfectly, and if you help the film will help you. तो I think मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है. I've never thought के अरे यार ये छोटा है तो इसमें ये हो जाएगा, और ऐसा करता हूँ इसमें जाऊंगा, और मैं जो एक मुहावरा सा इस्तेमाल होता है कि खा गए, एक कहा जाता है एक टर्म, कि अरे सामने वाले को खा गया. कई बार मुझे बोला जाता है कि अरे यार आप तो खा जाते हो, सामने वाले को कोई दिखता नहीं, आप दिखते हो. मैं उस एटीट्यूड से कभी काम नहीं करता. मेरा मानना है कि अगर सीन बेहतर होगा तो इट विल बी गुड फॉर एवरीवन. ऑल द एक्टर्स शुड लुक गुड इन दैट सीन शुड वर्क. आई बिलीव इन रिएक्टिंग टू द सिचुएशन, एंड my co-actors and my directors and the atmosphere we have on set. So I think it's collaborative work, and sometimes people don't treat it as art anymore. That is what I would say, and which is very unfortunate, because ये हम art में ही आए थे, and it has the beauty कि आपको एक ही फिल्म में सब actors अच्छे लग सकते हैं. I don't know why people start talking like कि भाई अच्छा ये बहुत अच्छा था, फिर इसके बाद ये था, फिर इसके बाद ये था. नहीं, सब अच्छे थे. मेरे घर में सब अच्छे हैं. ये वो सवाल जो बचपन से पूछा जाता है ना कि अरे बेटा पापा अच्छे लगते हैं, मम्मी अच्छे लगते हैं, मुझे दादा भी अच्छे लगते हैं, दादी भी अच्छी लगती हैं, नाना नानी सब. आई थिंक ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कई बार हम इसमें फंस जाते हैं. बट आई नेवर अप्रोच एनीथिंग लाइक दैट. You know, when you have said this thing that people don't take this form as an art, acting for that matter, and it is shown in the way Bollywood is doing right now, because they're not promoting art. It's either body or it's either looking a certain way, not the whole form which is acting or which is getting into a character and doing honesty to it. And like you said, कि ईमानदारी से आप करते हैं, and that honesty shows in every role, and it's amazing. It's a treat to watch you. Okay, so please tell me this thing. You have collaborated multiple times with Anand L. Rai. What makes your partnership with him so special, and how has it evolved over the years? I think it started with lots of love. I don't know where that came from, but Ranjana की शुरुआत में it was like a love kind of a relationship. तो हिमांशु शर्मा, writer of Ranjana, Tanu Weds Manu, Zero, and all these films. हिमांशु मेरा कॉलेज का दोस्त है, मुझसे 1 साल सीनियर था in our college, Firodimal College. तो वो मुझे जानता था. उसके चक्कर में हम आनंद से मिले, एंड ही रियली लाइक्ड मी, एंड आई आल्सो लाइक्ड हिम. एंड आई थिंक एक्टर्स के लिए आनंद राय जैसे डायरेक्टर्स बहुत जरूरी हैं, बहुत अच्छे होते हैं. इफ यू आर एन एक्टर, आई डोंट नो अबाउट स्टार्स, आई एम श्योर स्टार्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्टर्स को बहुत ज्यादा मजा आता है, बिकॉज द वे ही मेक्स यू कंफर्टेबल ऑन सेट, जिस तरह से वो कैरेक्टर को अप्रोच करने को कहते हैं, जिस तरह से वो आपको सुनते हैं, आपके पर्सपेक्टिव को सुनते हैं. तो आई थिंक वो एक रिलेशन हमारा बिल्ड होता चला. मतलब कंटिन्यूअसली मैं कुछ करता था, वो कुछ उसमें ऐड करते थे, एंड वो एक बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग बन गया. स्पेशली रांझना में ही वो बनता चला गया. देन तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के टाइम पे वो और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अलग तरह का कैरेक्टर भी था. तो वो बड़ा फनी भी है कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की कास्टिंग जब ये कर रहे थे, तो स्क्रिप्ट वगैरह का एक बेसिक आइडिया दिया था कि कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ वैसा कर रहे हैं. एक दिन उनका फोन आया आनंद सर का, एंड आई वाज सिटिंग देयर. आई एम जस्ट टेलिंग दिस ताकि आपको अंदाजा हो द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट वी शेयर. मैं बैठा हुआ था, आई रिमेम्बर कुमुद मिश्रा जो एक्टर है, कुमुद भाई, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था पृथ्वी थिएटर के पास. हम लोग बैठे हुए थे, कॉफी पी रहे थे, और मुझे फोन आया इनका. मैंने पूछा, मैंने कहा अरे सर क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? तो बोले बेटा कुछ नहीं, फिल्म में से तुझे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने कहा मतलब? तो बोले यार ये एक फिल्म है तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, तो उसमें कैरेक्टर है, और सबको लग रहा है, लग तो मुझे भी रहा है कि तू जो है इसमें परफेक्ट है और तू बड़ा अच्छा करेगा, लेकिन पता नहीं कि मुझे लग रहा है इसमें से ना तुझे रहने देता हूँ.
मैंने कहा यार ये क्या बात है, कह रहे हाँ तो मिलने तो आता नहीं है, क्या करूंगा तुझे रख के, आजा। आई वेंट देयर एंड देन obviously it was his way to tell me कि I've casted you in this film also. Wow. So this is the kind of relationship we have. वो टांग खींचना भी चलता रहता है, हंसी मजाक बहुत होता है, और वो दोस्ती जो है वो और पक्की होती गई वक्त के साथ, अभी भी पक्की है। अभी उनके घर पे ही था, उनके बर्थडे पे है वो। it's a very good relation I share. Right, very blessed, you know, so God's grace on that. So let me tell you one thing here. When you spoke about Tanu X Manu, basically returns, the character you played, you know, that left us in splits, okay, till the end, you know, till the end when you were there. And I remember we watched it in a hall, okay, and the audience was in splits till the end of this. So they were literally like, when we were coming out of there, everyone was talking about who is this guy, you know? And I think Ranjana left a big mark on your career and it shifted your whole career altogether. But before that, till Ranjana, did you have to go through struggles that actors go through, and they speak about like staying or going by locals and traveling by rigs, auditions, बहुत सारे? Definitely, मतलब I think देखिए, honestly speaking, I don't like using this word struggle. ठीक है, पैसों की कमी थी, डेफिनेटली थी, बट ये तो यार किस फील्ड में नहीं है। आई एम श्योर जब आपने भी शुरू किया होगा प्रोफेशनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसके पास अगर फैमिली का पैसा होता है, बट आपने जब शुरू किया होगा, आपने भी कम पैसों पे बहुत मुश्किलात में शुरू किया होगा, देन आप एक जगह पे पहुंचे हैं। कोई भी किसी भी फील्ड में जब आदमी एंटर करता है तो एक मेहनत कर ही रहा होता है, तो आई डोंट थिंक कि उसको ना इतना ग्लोरीफाई करना चाहिए। मुझे हमेशा ना वो बड़ी आपत्तिजनक लगता है मुझे कि ना बिना बात के बहुत ना सब लोग सिंपैथी लेते रहते हैं ये बोल बोल के ना कि अरे मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ। हुआ, ठीक है, होना था, आपकी एक जर्नी थी, उसकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। रिक्शा क्या, पैदल भी जाना पड़ता है कई बार, रिक्शा तो बहुत प्रिविलेज होता था उस टाइम पे। तो मैं वही कहता हूँ कि पैसों की कमी थी डेफिनेटली, बट स्ट्रगल नहीं था, मजा था। एक उसमें भी जिंदगी में वो था कि यार ऐसा करते हैं, आज वहां तक जाना है, 1 घंटा पहले निकल जाते हैं, पैदल चल रहे, क्योंकि अभी वो पैसे नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि उस टाइम चलते हुए मैं सोचता था कि ओ मेरे साथ कितना खराब हो रहा है, मुझे पैदल चल के जाना पड़ रहा है इतनी गर्मी में। ठीक है, वहां गए, मुंह हाथ धोया, काम पे ज्यादा ध्यान था। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी फील्ड के साथ ना बहुत ज्यादा हुआ है, जो अभी पिछली बात में बोल रहा था, इट इज एग्जैक्टली द सेम, कि इसको भी ना एक पैसा कमाने का ही फोकस बना दिया गया है। दैट इज वाई ये आर्ट से दूर चला गया है। हम ना आर्ट से ज्यादा ना कि अरे इसमें पैसा कैसे इन्वॉल्व था, और पहले कितना कम पैसा था और अब कितना ज्यादा पैसा है, उसको हमने ना बहुत छोटा कर दिया है, इस आर्ट फॉर्म को, सिनेमा को, पूरे सिनेमा को ही, और एक्टिंग को खासतौर पे। सारी कहानियां पैसों को लेके ही हैं, तो आई डोंट एंजॉय दो स्टोरी ऑनेस्टली। That's really, I feel rooted. So many of your films, like I said, Article 15, Rais, Shahid, they deal with socially relevant themes. How important is it for you to be part of stories that reflect societal issues? Would you be taking forward more roles like this? Definitely. I think that is one of the most important thing. Again, coming to the same point, कि हम आर्ट में हैं। आर्ट का जनरेशन जो है ना, आर्ट विदाउट अ मीनिंग और अ पर्पस इज नथिंग। देयर शुड बी समथिंग, देयर शुड बी अ स्टोरी दैट आई बिलीव इन, जो मुझे लोगों से कहना है, दैट आई अग्री विद। मे बी देयर इज अ कैरेक्टर दैट आई डोंट अग्री, वो बिल्कुल हो सकता है। मतलब जैसे मैं हमेशा वो एग्जांपल देता हूँ, जैसे हिटलर का एग्जांपल है कि भाई अगर कोई मुझे हिटलर का रोल दे तो क्या मैं मना कर दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, कमाल रोल है। पॉइंट इज कि वो फिल्म क्या कह रही है, कहीं वो हिटलर को हीरो की तरह तो नहीं दिखा रही। अगर दिखा रही है तो आई एम सॉरी, देन आई कांट बी अ पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट। तो उस तरह की फिल्में बहुत आजकल हमारे यहाँ भी बन रही हैं, बहुत ज्यादा इस तरह की फिल्में, जिनको आप प्रोपेगेंडा फिल्म बोलते हैं, और माउथ पीस फिल्म, जो भी आप बोलना चाहें। तो वो, उनसे मेरा डिसएग्रीमेंट है, तो वो मैं करता नहीं। तो ऑब्वियसली कहानी कहाँ से जनरेट हुई, आप क्या कहना चाह रहे हैं सोसाइटी से, आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आप क्या सवाल उठाना चाह रहे हैं उन लोगों के दिमाग में, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आई रियली गेट एक्साइटेड अगर मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट आती है जिसमें कुछ सोशली रेलिवेंट बात हो रही है। ऑब्वियसली ऐसी फिल्में भी हम करते हैं जिसमें डायरेक्टली कुछ सोसाइटी से बात नहीं की जा रही, इट इज जस्ट फॉर कोट एंड कोट एंटरटेनमेंट। तो वो भी करने का मजा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो फिल्में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सही है, मजा आता है उसमें भी। लेकिन अ फिल्म लाइक आर्टिकल 15 या शो लाइक स्कूप, या ये जितने भी आप एग्जांपल दे रही हैं, आई थिंक that is really important for me and I'll keep on doing that. मैंने बहुत बार सुना है इंटरव्यूज में लोग बोलते हैं कि whenever they are debuting, okay, and they are going ahead and speaking their first lines in front of a already established actor, there is a low confidence level, there is
कि मैं कैसे बोलूंगा, कैसे एक्ट करूंगा? आपको हुआ ऐसे कभी? नहीं, कभी नहीं। You have worked with so many great actors who were already established before you. एक्टर्स के साथ भी किया है मैंने, स्टार्स के साथ भी किया है। आई थिंक ये सवाल ज्यादा Yeah. स्टार्स वाले जोन में ज्यादा जाता है Yeah. एक्टर्स से ज्यादा। एक्टर्स में तो मैंने बहुत कम लोगों से ये सुना है कि घबराहट हो रही थी, क्योंकि मेरा मानना है अगर होनी है तो वहां होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका झूठ पकड़ लेंगे परफॉर्मेंस का। स्टार्स में आई थिंक अगेन वहां पे वही आता है कि इफ यू ओनली वांट टू बी अ स्टार, तो आप किसी की पोजीशन छीनना चाहते हैं, या आपको वो है कि मैं बिना इस तरह से उसके स्टारडम से इंस्पायर होके इस फील्ड में आया हूँ, आई एम श्योर उन लोगों को तकलीफ होती होगी, उनको घबराहट होती होगी कि अरे क्या होगा, नहीं होगा, अरे मेरा आइडल, मेरा ये, मेरा वो, हजार तरह की बातें। मेरा वैसा कभी ना था और अभी भी नहीं है। डेफिनेटली देयर आर एक्टर्स जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा सीखा है उनसे, बट इतना आइडियलाइज कर लेना कि मुझे घबराहट हो उनके सामने परफॉर्म करने में, आई थिंक वो तो नहीं होता। तो लकीली अभी तो काफी लोगों के साथ कर लिया है। होप के अभी ऐसा कोई मुझे ध्यान में आता तो नहीं है कि अरे यार उसके साथ काम करूंगा तो शायद नर्वस फील हो, ऐसा तो नहीं लग रहा अभी तक। नहीं, आपने बहुत यंग, when you were so young in the industry, that time you worked with a lot of well-established stars, like you said. And so अभी तो आपको होना भी नहीं चाहिए. You are yourself a legend in your own artwork that you're Thank doing. you. So Right. what is one thing that you have noticed, in terms of, because you have done different kind of roles, like you are on spot even when comic timings are concerned. You're very good with serious roles. So what are the different roles that you're looking forward to? Anything that excites. हाँ, मतलब it could. Is there something cooking as of now? There are a few projects जो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लेके आए हैं, पर अभी फ्लोर पे नहीं गए हैं। तो जो इंडस्ट्री का रहता है कि जब तक फ्लोर पे ना जाए, बल्कि जब तक रिलीज ना हो तब तक एक्चुअली अवॉइड ही करना चाहिए बात करना, बिकॉज यू नेवर नो क्या बंद हो जाए, क्या हो जाए। बट हाँ, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अलग तरह के दो फिल्में एक साथ होने की बात है थोड़े वक्त में। उसमें है मतलब 5-6 महीने बाद शुरू होंगी वो फिल्म, दोनों ही बैक टू बैक होंगी। जैसे उसमें मुझे एक अलग ट्रेनिंग लेने की जरूरत, सिंगिंग की ट्रेनिंग की जरूरत होने वाली, तो वो थोड़ा एक अलग, दोनों ही बहुत अलग कैरेक्टर्स हैं, बहुत आप मजेदार। गाते हैं वैसे? मैं बेसिक एनएसडी में जितना गाते हैं गा लेते हैं, तो उतना गा लेता हूँ। ऐसे अभी रियाज में नहीं हूँ तो वही है कि 4-5 दिन लगते हैं एक बार हारमोनियम पे गला ठीक करने में, पर हाँ गा लेता हूँ। गाता नहीं हूँ, मतलब आप सिंगर नहीं मान सकते मुझे, लेकिन अगर कभी बैठ के कहीं गुनगुना रहे हैं तो कर्कश नहीं लगता, इतना ही है। Is there anything cooking with, say, or is there anything happening with Anand ji? बातें हो रही है, मैं अभी और कुछ नहीं बोलूंगा, बट हाँ हमारी मुलाकातें हो रही हैं। देखते हैं कुछ पकेगा क्या, नहीं पकेगा क्या होगा, बट हाँ बातें चल रही। आपने क्रिमिनल जस्टिस में पंकज त्रिपाठी के साथ काम किया. He is also an amazing actor and now going through his star power. Okay, so how was it working? Did you learn something from his process, or you maintained yours and he maintained his? आई थिंक ऐसा ही था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है पंकज भाई के साथ। सो पंकज भाई वाज 3 years सीनियर टू मी इन एनएसडी। तो जब वो निकले थे तब मैं पहुंचा था एनएसडी में। आई न्यू हिम बिकॉज मेरा एक कॉलेज का सीनियर उनका बैचमेट था, तो आई यूज्ड टू विजिट एनएसडी, तो मैं जानता हूं उनको तब से हूँ। फिर बॉम्बे आके कभी कभी टकराए थे, तो ऐसा नहीं है कि यही पहली बार थी जब हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो पंकज भाई से पहले भी बात होती रहती थी। जैसे मुझे याद है रांचना के बाद उनका फोन आया था, फोन कॉल किया था उन्होंने, उनको बहुत पसंद आया था काम, और उसके बारे में काफी लंबी एक डिस्कशन सा हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने ही मुझे नील बटे सन्नाटा की स्क्रीनिंग के बाद पकड़ा था कि हाँ भाई बताओ, तुम अच्छे एक्टर हो, तुम बताओ कैसा लग रहा है। तो एक बेसिक, एक आई थिंक एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अभी भी कभी उनसे बात करता हूँ, बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत वार्मथ है उनके अंदर। एक्चुअली तो मैंने सबके साथ ही देखा है, पर मैं अपने साथ बात कर सकता हूँ कि मेरे साथ तो बहुत ही वार्मथ से बात करते हैं। मजा आया उनके साथ, थोड़ा सा वक्त बिताने का मौका मिला। हम लोग बैठते थे कभी कभी, अगर वेट कर रहे हैं किसी 2 सीन्स के बीच में, शॉट चेंज होने के बीच में, तो थोड़ी थोड़ी बैठकें हुई, बहुत छोटी छोटी, लेकिन बड़ा मजा आया उनसे जनरली बात करके। एक्टिंग वैक्टिंग पे भी थोड़ी सी ही बात हुई, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। ज्यादा तो ये वाला लिटरेचर पे जैसे उनसे बात हो जाती है, वो भी पढ़े लिखे आदमी है, मैं भी पढ़ता लिखता रहता हूँ थोड़ा बहुत, तो उस पे कह रहे तुमने ये पढ़ा है क्या, तो उन्होंने 1-2 चीजें मुझे बताई कि अरे यार तुम ये वाले भी राइटर्स पढ़ो, आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। मैं भी कुछ अपनी तरफ से मैंने बोला था कि ये भी है, तो कॉमन इंटरेस्ट। हाँ, तो एक अच्छा कुछ थोड़ा सा कुछ एक बिल्ड होने का वो था, मजेदार। Your journey in Bollywood has been inspiring for many outsiders. Okay, without a godfather, you went
and you created your mark, and this mark cannot be erased by anybody except the Almighty, of course. Okay, so what is an advice that you want to give to struggling actors now? What has changed from when you started, and what is the thing that they should work on now? देखिए, मैं बोलूंगा दो चीजें हैं। सबसे पहले तो जो भी है उनको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि वो सेलिब्रिटी उस तौर पे, मतलब स्टार जो हमारे यहाँ डेफिनेशन है, वो बनना है या आपको एक्टर बनना है। जैसे मैं कैरेक्टर एक्टर वर्ड से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। ये ना फिल्म इंडस्ट्री ने ही आपको दिया है, जर्नलिस्ट्स को और बाहर की दुनिया को, कि अरे ये कैरेक्टर एक्टर हैं, ये जो है ये हीरो है। ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसी वजह से ना क्वालिटी ऑफ फिल्म्स में आपको ना वो देखने को मिलता है। अगर लोग बोलते हैं अरे यार कैरेक्टर एक्टर्स ही अच्छे होते हैं, आइडियली तो हीरो का भी कैरेक्टर ही है ना, उसको भी कैरेक्टर ही प्ले करना चाहिए, बट नहीं कर पाते तो उन्होंने एक वो बना लिया है, एक ना शील्ड है ये, अरे हम तो हीरो है ना, हमारा एक्टिंग से क्या लेना देना। तो लोग बोलते हैं हाँ भाई हीरो है, इसको तो अच्छा दिखना चाहिए, इसको तो बॉडी होनी चाहिए, बाकी इसको एक्टिंग से क्या मतलब। और वो हल्का सा भी एक लाइन भी ठीक से बोल देते हैं तो फिर सब खड़े होकर शुरू हो जाते हैं कि यार क्या बात है यार, इस फिल्म में तो कमाल कर दी। आई थिंक ये ना यही छोटी छोटी डेफिनेशंस और जो कैटेगरीज बना दी गई उसके चक्कर में वो भी बेचारे फंस गए। नॉट लाइक के अभी वाले एक्टर्स की मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा फॉल्ट है, उनको पता ही ये लगा कि भाई हीरो होते हो तो आपको कुछ करना नहीं होता, तो वो बेचारे फिर भी मेहनत कर रहे हैं। आजकल तो काफी अच्छे अच्छे भी आ गए। तो मुद्दे की बात ये है फॉर न्यू एक्टर्स कि भाई आपको सबसे पहले तो डिसाइड करना व्हाट यू वांट टू बिकम। यू वांट टू बिकम एन एक्टर और डू यू वांट टू जस्ट बी अ स्टार। तो स्टार में तो देखिए कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ है नहीं, कोई तरीका है नहीं, वो तो किस्मत है। आप बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने। वो वाली बात भी है कि भाई कई लोगों की एक फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर रही और वो सेंसेशन थे, उसके बाद 2 साल बाद भी भुला दिए गए और आज कोई बात नहीं करता। ये भी रहेगा, हो सकता है आपकी 4 साल चल जाए, हो सकता है आप बहुत अच्छे बन जाए तो 10 साल चल जाए, 15 साल चल जाए, 35 साल चल जाए। जैसे हमारे 4 5 6 लोग हैं जो पिछले 30-35 साल से काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। एक्टिंग के तौर पे इट इज जस्ट लाइक के उसको आर्ट मान के ही काम कीजिए। ये कंपटीशन और इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए। आपका किरदार जो है वो आपका किरदार है। आप अपने किरदार को ईमानदारी से लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए। सच बोलेंगे तो ऑडियंस तक पहुंचता है, कितना भी करप्शन आ गया हो सच पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आपने एक लाइन भी अगर सच्चाई के साथ स्क्रीन पे बोली है, हो सकता है ऑडियंस आपकी फोटो अपने प्रोफाइल में ना लगाती हो और अपने घर पे पोस्टर ना लगाए, लेकिन जब आप कभी मिलेंगे उनसे बाहर, क्योंकि मेरे साथ होता है तो मैं बोल सकता हूँ, जितनी इज्जत से लोग बात करते हैं, मैंने स्टार्स के साथ भी लोगों को बात करते हुए देखा है और अपने साथ ही अपने और भी कुछ दोस्त हैं मेरे, वो बहुत अलग होता है। वो प्यार और वो इज्जत जो है वो उसी सच्चाई की वजह से। हमने ऐसा तो कुछ किया नहीं है उनके लिए कि भाई आपने बोले अरे हाँ इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया था तो इससे प्यार से बात करें, बट वो स्क्रीन पे देख के उनको कोई बात सच्ची लगी, उनको लगा कि ये मेरे जैसा इंसान है। और इंसान के अंदर एक बेसिक फितरत होती है दूसरे इंसान को पसंद करने की। वो करप्ट हो जाती है हजारों चीजों से, लेकिन वो फितरत कहीं जिंदा रहती है। आप बस अपनी सच्चाई पे ध्यान दीजिए। बड़ा रोल चाहिए तब हम कुछ करेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको जो काम मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, उसको ईमानदारी से कीजिए। फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट बर्बाद मत कीजिए, इज व्हाट आई वुड से। Great message, I would say. Very realistic and very close to the heart. Ek actor, or I would say one star out of all the present and probably 10 years back, 20 years back, one star whom you think is also an actor and you respect that craft hasn't died, even though he's a star. राजकुमार बहुत अच्छा एक्टर है। Very good, yeah. हाँ, और बड़ा स्टार भी बन गया है। वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे पंकज भाई के लिए बोलना, पंकज भाई डेफिनेटली, नवाज भाई, इरफान साहब, मुझे पता नहीं है हम कहाँ पे रखते हैं वो स्टारडम वाला मीटर, तो उसके हिसाब से वो सब बदलता जाता है। बट जैसे इरफान साहब थे, आई थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल। ग्रेट एक्टर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन। Yes. एंड ही वाज अ स्टार। जैसे नवाज भाई, मुझे वही लगता है आजकल कई लोग ना बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझ के ना बड़े आराम से बोल देते हैं अरे यार नवाज का ना अब चल नहीं रहा। नवाज भाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक्टर है ना, वो ना मतलब छोड़ो, क्या बोलूं। I can totally understand what you're saying. You know, somebody who has broken all stereotypes, he has broken all glass ceilings, I would say. Okay, so everything. So I think he's excellent. नवाज भाई जो करते हैं ना, वो एक जो उनका क्वर्क है वो लेके आते हैं, तो बड़ा आसान है ना यार टेबल पे बैठ के मैं भी बोल दूं कि हाँ यार नवाज भाई आजकल ना कुछ कर नहीं पाते। नहीं, ये गलत है। आई थिंक ये एग्जांपल 4-5 जो हमने 2-3-4 हमने जो डिस्कस किए, I think the best names. Okay, so thank you so much for your time, Zishan. You're welcome. Thank you. Many things that you have shared about your life and your journey.
and I'm sure I have enjoyed it a lot, so the audience would too. मुझे बहुत मजा आया। मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग ना बड़ी ईमानदारी से सवाल पूछते हैं और कुछ ना वो स्टॉक क्वेश्चंस रहते हैं, कम से कम हम उनसे बचे। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप एंड ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर आगे बहुत बढ़िया बढ़िया आप इंटरव्यूज देंगे और बहुत अच्छा काम। Thank you so much. थैंक यू।